and we have seen that this HT, you refer from your note, that we have calculated uh, this final equation as AC cos 2 pi FCT plus m by इसको बोलते रहो अपने जो नोट्स देख के क्या लिखा था एनीबॉडी MAC by 2 sir. MAC by 2 cos Into 2 cos pi of 2 pi FM plus FC FC. minus FMT and plus MAC by 2 cos 2 pi FC plus FM by 2, right? This is correct, and you can. So what you have seen, and so this is your standard AM, right? Okay, this is a standard AM. So let us say find out power. We have already calculated what is the requirement for the power transmission. Let us say what is the bandwidth. Bandwidth of AM, right? So for the bandwidth of AM, what is the bandwidth? Bandwidth means bandwidth क्या होगी? Bandwidth means that is the band of frequency that the system allowed to pass, right? Okay. Bandwidth means a bandwidth of a system means the range of frequency that is allowed to pass through it. Okay. So we have to find out, so what is the bandwidth required for the AM transmitter. For that you have to find out the frequency range, and for that you have to plot the spectrum. Okay, so if you plot the frequency spectrum, then as I have already we have already plotted, I am doing it again for here. So you see that is what are the frequency available. So one is frequency is your FC. Okay, this frequency is FC. Now another frequency is your FC minus FM. So let us say this is your FC minus FM, and the third frequency component is FC plus FM, right? So you have this FC plus FM, right? So this is your this is your FF. This is the parameter of your frequency. So this becomes the frequency in y-axis. Now we have to find out bandwidth. Okay. So if no, so we have to find out this bandwidth will be the what is the frequency range available. So this frequency range is available from here. Okay. This is called the bandwidth, BW. Okay. Now, so if you have to calculate this frequency, then this bandwidth will be this is the lower frequency. You can call it this is this you can call it FC. This is your lower frequency, and this is your higher frequency, right? So the bandwidth is your FH minus FL. Okay, highest frequency minus the lowest frequency. So this becomes your twice FM. ठीक है ना, करके देखो आगे twice FM. So the bandwidth of standard AM is twice FM. What is the FM? What is the FM? Frequency of modulating wave.
या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आर द मैसेज सिग्नल। सो इसका मतलब क्या होगा, जब बैंडविड्थ ऑफ द एएम डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रीक्वेंसी आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, so if you have to this, so this means and the bandwidth, you know, that is bandwidth is a very important parameter in your designing of your communication system. Bandwidth means, suppose that is on a channel, you why you always need a high bandwidth। आप अभी रोज तुम लोग कहते हो सर बैंडविड्थ कम है ना, डाउनलोडिंग कम हो रही है, सो व्हाट इज द नीड, व्हाई यू नीड, सो डू यू नीड अ हाई बैंडविड्थ। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बैंडविड्थ, आप जो लोकल टर्म में टॉक करते हो, दैट इज द चैनल बैंडविड्थ, राइट। सो यू नो दैट इज, दिस इज द चैनल, ठीक है ना, एक ही आपका चैनल बैंडविड्थ है, राइट। और आई टोल्ड यू दैट इज ऑल सिस्टम, इंजीनियरिंग में सारे सिस्टम के बैंडविड्थ होती है, ठीक है ना, चाहे तुम्हें जरूरत पड़े, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन की बात करो, चाहे ट्रांसफार्मर बात करो, एवरीथिंग हैज अ बैंडविड्थ, बिकॉज एवरी सिस्टम जहां पे इंडक्टर आएगा वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाती है, राइट। एंड एक होता है आपका सिग्नल एमटी, राइट, इस चैनल को हम बोलते हैं एचटी, राइट। सो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, बैंडविड्थ होगी, एक इसके बैंडविड्थ होगी, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर बैंडविड्थ की लो बैंडविड्थ है, ब्रॉड बैंडविड्थ है, वो आप बात करते हो चैनल बैंडविड्थ की, राइट। ओके, सो द चैनल बैंडविड्थ, सो द चैनल बैंडविड्थ शुड बी वेरी हाई। चैनल बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी हाई। ओके, सो बैंडविड्थ ऑफ चैनल शुड बी इनफाइनाइट, जबकि होता नहीं है, इनफाइनाइट कोई चीज नहीं होती है, बट इट शुड बी वेरी हाई। और जो आपका ये सिग्नल बैंडविड्थ, और इस हम तो इसको बात कर रहे हैं एसटी की, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि ट्रांसमिशन किसको करना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। इट शुड बी कितना होना चाहिए, इट शुड बी लो और हाई, बोलो, इट शुड बी लो और हाई, कोई दिमाग में लगा सकना होती है, सब चुप हो गए। इट शुड बी लो, राइट, क्यों कि तुमको इसको ट्रांसमिट करना है, तो अगर इट शुड बी हाई तो इट विल ऑक्युपाई मोर बैंडविड्थ, सो नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विल बी लेस नंबर, और तुम चाहते हो कि नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड शुड बी हाई, एक ही बार में बहुत सारे सिग्नल तुम चाहते हो, ठीक है ना। सो दिस मीन्स इसका सिग्नल रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड बी लो, वेयर एज द चैनल बैंडविड्थ शुड बी हाई एज पॉसिबल, और ट्रांसमिटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितना चाहिए, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ओके, सो दिस मीन्स आपका मॉड्यूलेटर कौन सा अच्छा होगा, जिसका बैंडविड्थ लो होगा, राइट, दैट प्रोड्यूसेस ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल विच बैंडविड्थ इज लो। ओके, इज इट क्लियर। नाउ लेट अस सी, अब आप सोच लो कि डीएसबी का बैंडविड्थ कितना होगा। bandwidth of DSB I told I am writing in short but it is a DSB AM, right। इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी बताओ, जब आप मैंने बता दिया, का दूसरा बता दो फटाफट। सेम, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी स्पेक्ट्रम प्लॉट करोगे तो इससे स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एफसी नहीं होती है, ठीक है ना, बट इट हैज एफसी माइनस एफएम, एंड पहले तुमको फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ निकालने के यू हैव टू प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और तुम जल्दी से प्लॉट कर लोगे एफसी प्लस एफएम, बिकॉज डीएसबी में एसी सिग्नल कैरियर सिग्नल इज नाउ सप्रेस्ड। ओके, सो इसकी बैंडविड्थ आपकी वही हो गई, सो इन DSB its frequency will be 2fm, very similar। okay, so there is no gain, but तुमको पता है कि पावर रिक्वायरमेंट आपके DSB की कम होती है, so it is better than। now SSB कर लो, बैंडविड्थ आप SSB की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी बता दो। सेम सर, 2 कैसे हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करो तो
स्पेक्ट्रम प्लॉट करोगे? सो इन डीएसबी वी प्लॉट, ये आपका क्या होता है, ये एफसी होता है, इसके बीच में एफसी था, ठीक है ना, और ये आपका अगर जो अपर साइड बैंड लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा एफसी प्लस एफ एम, राइट? तुम लोगों को दिख रहा है ना? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो ये इसकी बैंडविड्थ इतनी ही हो गई ना तुम्हारी, ओके? सो कितनी हो गई इसकी बैंडविड्थ? एफ एम हो गई। तो डीएसबी में बैंडविड्थ आपको जो है, अच्छा इसकी पावर कितनी होती है? हमने कितनी पावर कैलकुलेट कराई थी इसकी, बताओ सर? 1/4 होती है सर कैरियर सिग्नल की। अरे इसकी इक्वेशन बता दो ना, PC/4, ठीक है ना, और इसकी कितनी होती है? PC/2। PC/2, और इसकी कितनी होती है AM की? PC × 1 + m² 1.5। बेवकूफ हो, जब इसी टाइम बताओगे जब सबको PC रहे, 1.5 टाइम PC, दिस इज मैक्सिमम, राइट? दिस इज मैक्सिमम। तो अब आपको पता चल गया कि इफ यू वांट टू कंपेयर दिस थ्री मॉड्यूलेशन विद रेस्पेक्ट टू बैंडविड्थ एंड द पावर, तो आपको पता है कौन सा सबसे अच्छा होता है। तो इसमें आपको कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है? इस तीनों में सबसे अच्छा कौन सा होगा? SSB। SSB हो जाएगी, राइट? क्या नाम है तुम्हारा? अनस। ठीक है अनस। तो ऐसा कुछ और भी है ना? देखो, आई वांट ए इंटरेक्टिव टाइप। अनस इज वेरी गुड, है ना, एक्सीलेंट। सो दिस मीन्स दैट इज in amplitude modulation, SSB AM is the best modulating signal। लेकिन किस पैरामीटर? सिर्फ दो ही पैरामीटर के ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, ओके? बाकी चीजें हम बाहर सर्किट्स में देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था सिस्टम मार्केट में कौन सा चलता है जिसकी लो कॉस्ट चाहिए, ठीक है ना, कॉस्ट भी इसका लो होना चाहिए। तो अब आपको देखना है इसकी कॉस्ट लो होगी कि हाई होगी, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना। एक और चीज होती है नॉइज, ठीक है ना, और इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सो दिस इज आल्सो एक की बहुत स्टैंडर्ड चीज मान लो तुम लोग इसको, हालांकि SNR तुम्हारे पास नहीं पढ़ाएगा, लेकिन SNR एज आई टोल्ड यू, नॉइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो उसमें क्या होता है कि जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसमें नॉइज कम होगा, समझ गए ना? क्या समझे? हेलो, फिर चुप क्यों हो गए? जो मैंने बोला उसी को दोहराना, तुमको रिपीट करना है। लोअर द बैंडविड्थ, लोअर द नॉइज। तो इसमें नॉइज किस में कम होगी? सर SSB में। SSB में होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें तुम लोग इसको नोट कर लो, ये वाइवा इंटरव्यू के लिए जैसे बेस्ट थिंग्स होता है। बहुत सारी चीजें मैंने बताया, जो बोलता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, ठीक है। तो अब आपको नॉइज के बारे में एनालिसिस नहीं पढ़ाऊंगा, बट पावर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओके। नाउ आई विल फिनिश ओवर हियर इस टॉपिक को, और थोड़ा सा मैं दूसरी चीज चल रहा हूँ। इसमें कोई सवाल पूछना किसी को? एनीबॉडी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? नो। तो लेट अस सही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो आया था SSB का, सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दो। SSB का फ्रीक्वेंसी टर्म, SSB फ्रीक्वेंसी टर्म कहाँ से आया? क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सर? हाँ ठीक है, ये चलो अभी तुम्हें बता दे रहा हूँ। SSB का इक्वेशन क्या होगा? SSB किसे कहते हैं? सर सिंगल साइड बैंड। सिंगल साइड बैंड, यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ये साइड बैंड आएगा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या बची? FC + FM। हाँ, तो वही तो हमने प्लॉट किया था यहाँ के ऊपर। हमने क्या प्लॉट किया था? आपको यही तो प्लॉट किया था, एक FC + FM। तो FC तो तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल ये रहेगा नहीं तुम्हारा, ये हमने सिर्फ ओरिजिन दिखाया है। तो तुम्हारा यहाँ से लेके यहीं तक बैंडविड्थ जाएगी, राइट, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, यस। तो अब इसको मैं जब डिलीट कर दूँ फिर आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल इक्वेशन याद रखोगे ना, जो मैंने ड्राइव किया, तो फिर बाकी चीजें वहीं से आती है। कोई चीज रट के नहीं आती है, कि मैं तुमको बताया
कि इंजीनियरिंग में कोई चीज रटी नहीं होती, हर चीज मैथमेटिक्स से साबित होती है, तो वो बट वो मैथमेटिक्स की पुरा सबसे पहली इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, राइट। नाउ लेट अस सी, अब हमने अभी तक हमने क्या किया था कि हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने लिया था, mt लिया था हमने, राइट। वी हैव टेकन mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt, यही लिया था ना। आपका एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। नाउ इफ लेट अस से मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, देखो नॉर्मल क्या होता है, प्रैक्टिस में क्या होता है कि मल्टी टोन मॉडल, क्योंकि जो तुम्हारा अगर जो तुम्हारा कोई ऑडिटोरियम में कोई ऑर्केस्ट्रा बैंड चल रहा है ना, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगी बताओ, क्या क्या होती है उसके अंदर है। कोई गा रहा है ना, साउंड से वो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हुई, वॉइस सिग्नल हो गया। उसमें तुमने गिटार बजा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। हारमोनियम बजा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। और तुम तबला बजा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो एटलीस्ट कोई भी तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम जो होता है एंटरटेनमेंट का, उसमें तीन तो होते ही हैं, एक गिटार समझ लो, एक तबला समझ लो, और एक वॉइस फ्रीक्वेंसी। तो तुमको पता है इन तीनों में सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, अंदाजा लगा सकते हो। एक गिटार बजा रहे हो और एक आदमी गा रहा है, यानी वॉइस फ्रीक्वेंसी, और एक हो गया तुम्हारा तबले की, ड्रम की। बताओ इन तीनों में किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसकी हाईएस्ट होगी। तुम लोग को लगता नहीं, तुम लोग कोई सवाल पूछो बिल्कुल सो जाते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं नर्सरी के बच्चों पढ़ाऊं जिनको बैकग्राउंड नॉलेज बिल्कुल जीरो है। एनीबॉडी? सब सो गए। अब फ्रीक्वेंसी इसमें होगी कि नहीं होगी? हेलो, आर यू हियरिंग? यस सर, होगी। तुम लोग को लगता नहीं है कि तुम लोग को मतलब कोई सवाल पूछो तुम लोग ऐसे सो जाते हो, जैसे लग रहा है कि मतलब जो है एक, तुम लोग पढ़ते क्या लाइफ में, तुम लोग करते क्या यार, मैं समझ में आता है तुम लोग कोई म्यूजिक सुनते हो, कुछ करते जिंदगी में, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है सोने के अलावा है? तुम लोग कहीं से इंजीनियरिंग लगते हो, तुम लोग सुनो कहीं कोई इस बात को जिक्र तुमने किया। सो लेट अस सी, सो दिस मीन्स कि लाइफ में जब भी आपको सिग्नल आपको जो ट्रांसमिट होकर आपके पास आ रहा है, सो इट हैज ए मल्टी फ्रीक्वेंसी, और मल्टी फ्रीक्वेंसी मीन्स ये मल्टी टोन हो गया। तो आपको तीन चैनल निकल आया आपका, आप सिंपल हमने बताया, तो आपको क्या आ जाएगा, ये तीन चैनल आपका हो गया। एक आपका हो गया M1T, एक हो गया M2T, एंड एक हो गया M33, ठीक है ना। अब इन तीनों को क्या करते हैं, आप मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, मिक्सिंग करते हैं, फिर आपको जो है म्यूजिक आपको सुनाई देती है, ठीक है ना। इफ यू आर एंजॉयिंग सम म्यूजिक, सो इट हैज एटलीस्ट थ्री, ये तो एटलीस्ट थ्री है। और जहां तुम देखोगे ऑर्केस्ट्रा बजते हो, देखो 20 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो 20 किस्म के कम से कम सिग्नल जनरेट होंगे, राइट। एंड देन यू फील, आई मीन्स वो आपको जो है इंजॉयमेंट, एक म्यूजिक आती है, वहां पे आती है। सो इट हैज ए, बट ऑल हैज ए different frequency. Okay, let us see, we have only three frequency. So in real life it is not a single tone frequency, it is a multi-tone modulation. Okay, so in multi-tone modulation, let us say आपका जो पहला सिग्नल M1T है, right, which has AM1 cos 2 pi F1T, then you have M2T which has AM2 cos 2 pi FM2T, and you have M33, अभी हमने आपको तीन का दिया, but it can go many, so multi-tone means more than one, right, its amplitude may be different, and importantly its frequency will be different. Okay, so what happened, अब इस केस में आपको FM क्या होगा, अभी आपने जो फ्रीक्वेंसी आपने बैंडविड्थ निकाला था, ठीक है ना। सो आपने कहा था AM मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस FM, यही तो आपने कहा था।
So what will be FM here? Right? FM क्या होगा यहाँ के ऊपर? So in this case, if you have three frequency, you have three frequencies here, right? FM1, FM2, FM3, three frequencies. So what will be the FM? So FM is your maxima of FMI. So आपका FM जो है FMI कई भी हो सकते हैं ना, आपको चाहे 100 ले लीजिए आप, तो क्या मतलब हुआ? FM, what is FM then? Highest frequency, right? So the highest frequency in the input signal. तो आपके पास मल्टी फ्रीक्वेंसी है तो FM के so बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? नहीं, बैंडविड्थ में 2πfm का यार, 2fm है ना, तुम लोग मैं कुछ भी गलत बोलते रहोगे यार, है ना, ये नहीं करोगे सर आपने गलत लिखा है। तो बैंडविड्थ ट्वाइस FM होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर इस केस में क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट होगा वो लिया जाएगा, मैक्सिमा लिया जाएगा, मैक्सिमा ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो दिस इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट बैंडविड्थ इन योर मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। ये क्लियर हो गया? ओके, इज इट क्लियर? कुछ सवाल पूछना है? अब चलो, अब आप एक तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे, अब दूसरा कैलकुलेट क्या करना है? पावर, है ना। सो पावर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन पावर किस पे डिपेंड करती है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ मॉड्यूलेशन AM सबके अलग अलग है। अच्छा, कैरियर सिग्नल तुम यहीं लिख लो, कैरियर सिग्नल विल बी सेम। सो द कैरियर सिग्नल विल रिमेन द सेम। AC क्या हो गया? AC cos 2π FCT, कैरियर विल रिमेन द सेम। सो इसमें अब तुम्हारे पास 3 इनपुट सिग्नल हो गया, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो जाएगा? M1 मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा? AM1 by AC, राइट। एंड M2 कितना हो जाएगा? AM2 divided by AC, and M3 AM3 by AC, राइट। अगर जो 4, 5 है तो उसके अलावा चल रहा है। सो इट हैज 3 मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी कि M क्या होगा? M कैसे कैलकुलेट? बिकॉज पावर कितना होता है? पावर इज इक्वल टू राइट। सो पावर आपने जो कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड AM का हम लेकर चल रहे हैं, तो PC 1 + m²/2 यही होता है ना? यस हाँ जी। PC क्या है? पावर कैरियर वेव की। हाँ, इसका कितने का फॉर्मूला क्या है? AC² by 2। AC²/2, ठीक है ना। सो नाउ हियर इट इज M and you have now 3 M. So what will be the effect? तो आपको निकालना क्या है? इफेक्टिव M निकालना है, राइट। So you have to find out here MT लेटर से कर देते हैं, ये इफेक्टिव M आपको कैलकुलेट करना है। So how to find out? Okay, now it is simple mathematics is that आपका इसका मतलब क्या, इनपुट पे 3 वोल्टेज सिग्नल है, these all are वोल्टेज सिग्नल, राइट। सो इनका इफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालोगे? AM1, AM2, AM3 है, तो इनका इफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालोगे? ठीक है ना। सो दिस AM यानी ये इफेक्टिव वैल्यू जो निकलेगा, ये होता है आपका स्क्वायर रूट AM1² प्लस AM2² प्लस AM3², ठीक है ना। ओके, सो अब इसको क्या करो कि इसको AC से डिवाइड कर दो, AC से डिवाइड कर दो। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो AM by AC will become your
हेलो, यस सर। जी मोहन भाई, मैं जब क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है ना, क्लास। So this is am square plus am2 square plus am3 square and this is divided by AC, right? So इसको फिर से लिख लो. So this will become your amn square divided by AC square plus am2 square divided by AC square plus am3 square divided by AC square, और ऐसे और होगा तो और आगे तक चला जाएगा, ठीक है. सो अब क्या हो गया तुम्हारा, अब देखो ये am by AC क्या हो गया, ये तो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया. तो इसको हम टोटल M3 लिख दे रहे हैं, और ये अंदर क्या हो गया, am1 by AC क्या हो जाएगा तुमने कहा है, m1 तो स्क्वायर यहाँ पे m1 हो गया ना. यस सर स्क्वायर सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज सिंपल. अगर जो ये हो गया आपका, आपको दो ही चीज चाहिए था. अगर जो मल्टी टोन है तो इफेक्टिव आपका मॉड्यूलेशन वो FM क्या होगा और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा. दिस टू फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. सो अब तुमको पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, तो क्या करोगे, ये MT को यूज करोगे, ठीक है ना. सो इन दिस केस PT क्या हो जाएगा, PT विल बिकम PC 1 प्लस MT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द बैंडविड्थ एज वेल एज द पावर ऑफ ए मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. और ये चाहे आपका SSB हो चाहे DSB हो, सब में सबसे मतलब इक्वेशन यही इस्तेमाल होंगे, ठीक है. इज इट ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है. थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आओ ना, थोड़ा सा बोलने लगो तो मुझे और मजा आए पढ़ाने में तुम लोग को, ठीक है ना. कभी कभी आता है जब तुम लोग, मैं तुमसे बता दिया कि ये और इसमें कोई भी चीज, इसमें जब तक पढ़ाया मैं जितनी मैथमेटिक्स हुआ, इसमें कोई ऐसी चीज जो नया बिल्कुल है तो मैंने कभी मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं किया था. इज इट ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स? नो सर. नो सर. समझ में आ रहा है? यस. ओनली थिंग इज दैट इज यू हैव टू, जो मैंने तुमको बार बार कहा, तो जो तुमको पढ़ाया गया और भूलने की नहीं होती, वही चीजें तुमको रियल लाइफ में इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना. सो जो मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा है, जो तुम हमने कहा, ठीक है. सो अब क्या रह गया इसमें, सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड पावर, बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लिया हमने. अब कैसे जनरेट करते हैं, अब करना है कि रियल लाइफ में कैसे करना है इसको, मॉड्यूलेशन को कोई सर्किट बनेगी इसकी ना, तो कैसे जनरेट होगी, तो AM मॉड्यूलेटर हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ AM. जब हम AM लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड AM, जिसके अंदर तीनों सिग्नल आ लेंगे, कैरियर भी रहेगा, लोअर साइड बैंड, हायर साइड बैंड, ठीक है ना. अब जब DSB लिखूंगा तो DSB होगा, SSB में SSB होगा आपका, ठीक है ना. बताइए, जब AM लिखें तो दिस में इसीलिए स्टैंडर्ड AM, हमें स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं बार बार. तो हाउ टू जनरेट, सुना, इसको सर्किट्स को कैसे डेवलप. और तुमसे मैंने पहले क्या कहा था, सर्किट क्या होती है, सर्किट कैसे बनेगी. सर्किट में तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है ना, खाली तुम सर्किट ड्रॉ कर दो. सर्किट पहले बनेगी मैथमेटिक्स से, ठीक है ना, पहले उसकी मैथमेटिक्स आएगी, वहां से सर्किट बनती है, ठीक है. सो फर्स्ट विल, सो इसमें मैंने पहले ही कहा था कि इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन सारा करेंगे, ठीक है ना. क्या करना है इसमें यार. सो फॉर जनरेशन दे आर टू स्टैंडर्ड टेक्निक है इसमें. नहीं देखो, टेक्निक बहुत सारे हैं और आज तक वो चला आ रहा है, बट हम जो इसमें दो स्टैंडर्ड टेक्निक है, एक है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और एक है आपका स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है. सो इसको मैं लिख दे रहा हूँ. तुम लोग, हमने कहा नोटबुक पर नोट करते रहो, पता है डोंट नहीं, तुम नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो.
ताकि मैं जब अगली बार बोलूँ तो उसको दिखाते रहो। क्या मैंने बोला था? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। तो फर्स्ट टेक्निक इज स्क्वायर, यार क्या तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है ना, और दूसरा मैंने क्या किया, स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो विल डिस्कस वन बाय वन, एक एक को पहले लेते हैं। पहले हम जो है इसको जो है स्क्वायर लॉ को डिस्कस करते हैं, फिर आपको स्विचिंग को बताएंगे एक बार। ठीक है, तुम लोग से ज़्यादा सवाल पूछो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि तुम लोग बताते हो नहीं। ना स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका एक डिवाइस है, ठीक है ना, एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें आपने रख दिया लेटेस्ट से VIT और इसका आउटपुट हो गया लेटेस्ट से V0T। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड, इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस, इनफैक्ट इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिवाइस। So any device or any component, ठीक है ना, that follow square law is called a square law device। और square law क्या होता है? So a device, a non-linear device that follow the square law, so इसको हम लिखते हैं V0T is given as A1 तुमने पैराबोला पढ़ा तुम लोगों ने? पैराबोला का क्वेश्चन क्या होता है? 4AC sir, 4AC स्क्वायर होता है। yes sir। सो पैराबोला K1 ले लो, चाहे इसको कांस्टेंट K1 कर लो। K1 VI स्क्वायर, टी को हम हटा दे रहे हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, तुम लोग समझ जाना टी पैरामीटर है। एंड K2, नहीं सॉरी, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, ये मैं काट दे रहा हूँ लिखने में, VI प्लस K2 VI स्क्वायर। सो दिस मीन्स दिस इज द फॉलोइंग द स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। इसका कर्व प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा? ये इस तरह का आएगा, हाफ पैराबोला हो गया, ठीक है ना, और इधर खींच दो तो पूरा पैराबोला बन जाएगा, राइट। ये होता है स्क्वायर लॉ। इट इज नॉट ए लीनियर। लीनियर कैसे बनेगा? लीनियर होता है आपका इस तरह से, ये लीनियर डिवाइस है। दिस इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, और इसका जो कर्व प्लॉट करोगे अगर जो तुम देख लेना तो ये इस तरह से प्लॉट होगा, ये आपका V0 हो गया और नीचे VI हो गया, ठीक है। ऐसे कर्व का कोई डिवाइस तुमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में? याद आ रहा है तुम्हें? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा ना तुम लोगों ने, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था तुम लोगों ने, एनालॉग और कौन से, मैं कल से एक और डिवाइस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, याद आ रहा कुछ है? नहीं आ रहा है, क्यों? तुम लोग पढ़ो क्यों इसको जो है? अबे डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? यस सर, फॉरवर्ड में, यस सर। ये डायोड जैसा नहीं लग रहा है तुम्हारा? हाँ यस। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि डायोड फॉलो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायोड क्या हो गया आपका? नॉन लीनियर डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सिंपली आप डायोड लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। अब ये आपको मैथमेटिक्स करने के बाद आपको ये देखना है कौन सा कंपोनेंट, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, तीन आपने पढ़ा है, ठीक है ना, ओके। और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओगे तो डायोड और ट्रांजिस्टर, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही डिवाइस होते हैं, कौन कौन सा तुमने पढ़ा अभी तक? डायोड और ट्रांजिस्टर, कोई और पढ़ा है क्या? हाँ जी, तीसरा कुछ पढ़े हो डायोड और ट्रांजिस्टर के अलावा? सर अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर पढ़ रहा है। नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से छोड़ दो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज तुमने पढ़ा था।
यही दो डिवाइस है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर में तुमने बीजेटी एफएटी सब पढ़ो लिखा है ट्रांजिस्टर, और डायोड में जेनर डायोड, फला डायोड, सब डायोड है। तो बेसिकली क्या है, अब आपने जो बताया थायरिस्टर, थायरिस्टर मीन्स एससीआर ना। यस सर। एससीआर, ट्रायक, sir. डायक, यही पढ़े तुम ना, ये तो पढ़े पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सबका क्या Yes, है, sir. बेसिक क्या है, सबका बेसिक डायोड है, ठीक है ना, राइट। सबका देखोगे जो तुमको एक्सप्लेन कोई टीचर करे कायदे से ट्राइक डाइप को, तो बेसिकली डायोड होते हैं, ठीक है ना। इट इज ए जंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन। व्हाट इज ए डायोड, डायोड सिंपली ए पीएन जंक्शन। तो एससीआर इज मेड अप ऑफ 2 ट्रांजिस्टर। इसका एससीआर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो 2 ट्रांजिस्टर बनेंगे बैक टू बैक कनेक्टेड, ठीक है ना। इसका तुम्हें एससीआर का तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा तुमने? अरे तुम हाँ या नहीं तो बोल सकते हो ना जी कहते। यस सर, यस। तो क्या पढ़े हो, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट पढ़ा था उसका? नहीं पढ़ा था तो किताब में अभी जाकर देखो कि एससीआर का वो थायरिस्टर को फैमिली बोलते हैं, इसमें एससीआर, ट्राइक, डाइक सब आएंगे, ठीक है ना। तो एससीआर का इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर कौन सा है, ट्रांजिस्टर, बल्कि इक्विवेलेंट पढ़ोगे तब वही आ जाएगा तुम्हारा, 2 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। तो फंडामेंटली क्या है तुम्हारा, डायोड और ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे उसमें क्या है, बेसिक सर्किट में क्या आता है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, और कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी तुम ट्रांसफार्मर पर हो, ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट बना तो क्या बनता है, इंडक्टर और उसी से रजिस्टर से बनाते हो है? तो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हो गई, 3 तो तुमने पढ़ा था शुरू से, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और 2 और जोड़ लो, ट्रांजिस्टर और डायोड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे 5 ही कंपोनेंट्स हैं। अगर ये 5 कंपोनेंट्स का कैरेक्टर तुम्हें याद हो गया है तो दुनिया के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सर्किट्स हो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब चीजें तुम्हारी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जहाँ पे हमने ये मैथमेटिक्स और सर्किट एनालिसिस पढ़ा था। ये सिर्फ 5 चीजें तुमको याद रखनी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, और बेसिकली तुमको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़नी है जो मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो लेट अस से कम टू, यहाँ पे आ गया। तो अब हमने एक नॉन लीनियर डिवाइस बना लिया, ठीक है ना। अब आपका मॉड्यूलेटर हमने क्या किया, तो मॉड्यूलेटर में हमने एक लगा दिया, हमने एक तुमको एक सर्किट में जो है आप ये वाली बातें पढ़ानी जरूरी होगा, तुम ऐसी जो है बिल्कुल बुक स्टाइल में पढ़ाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन जरूरी ये है कि तुम लोग थोड़ा सा स्टाइल तुम लोग को वही पढ़ने का है, इसलिए मैं उसको जो है, सो दिस इज ए सर्किट, ठीक है ना। आप स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ओके, समझ गए। सो इसमें क्या है, सो सी दिस इज योर कैरियर, राइट। ये आपका सीटी कैरियर हो गया आपका, और ये एम्प्टी हो गया। सो V1 कितना हो जाएगा यहाँ के ऊपर, V1T कितना हो जाएगा बताओ, दोनों का सम हो गया, एम्प्टी प्लस एसी, यस सर, एम्प्टी प्लस AC cos 2 पाई FCT हो गया। और ये कौन सा स्क्वायर लॉ डिवाइस है, राइट। तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 V1T प्लस K2 V1T स्क्वायर, यही होगा ना, हमने जो फार्मूला ऊपर लिखा था। तो ये V2 आ गया, ठीक है ना। ये बैंड पास फिल्टर को हम बाद में बताएं क्या होगा। अपने जब V2 को कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, कैलकुलेट V2। तो पहले डिलीट कर दूं ताकि स्पेस खाली,
ठीक है ना। अब सिंपल हो गया तुमको। सो इफ यू कैलकुलेट V2, इसमें करना क्या तुमको है कि V1 V2 की वैल्यू रख दो उसका ऊपर, जो है वो V1 की वैल्यू रख दो वहां के ऊपर, राइट। पुट दिस वैल्यू ऑफ V1, रख के देखा देख भैया। सो आपका ये क्या आ गया, सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ V1, so you got this value K1 MT। V1 की वैल्यू कितनी है ऊपर में दिखा रहे तुमने, MT प्लस AC cos 2 pi FCT, तो AC cos 2 pi FCT पर दिस इज स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करो, तो टाइम बचाने के लिए तुम लोग को जो है। सो नाउ इफ you do this further calculation, सारा उससे नीचे लिखो, लेकिन ये यहाँ पे right। so if you further calculate, this will become your, इसको कर किया कि हमने इस स्क्वायर को ब्रेक कर दो, ठीक है। break this square and you will find this relation, okay। now if you simply further classify, so you will get this equation, right। ठीक है। if you simply mathematical manipulation, you will get this relation, okay। so कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को इसमें? हेलो, अरे तुम लोग कुछ लिख रहे हो, उतार रहे हो, खाली इसको क्या कर रहे हो? क्वेश्चन को लिख रहे हो? यस सर। कोई अपना टेक्निक यूज करो। नाउ इसमें अब करना क्या हमें है, ये फाइनल हमारा इक्वेशन आ गया, Km mt प्लस K2 m स्क्वायर t प्लस, कैसे चलना बंद प्लस K2 ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं, या देखो इसको, तो ये लाइट थोड़ा सा यहीं लिख दें, चलो यहाँ छोटा छोटा लिखते हैं, इसमें जगह चाहिए ज्यादा इसके लिए। सो लेट अस से राइट हियर, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लो, ठीक है। इसको वाई एक्सिस छोड़ दो, मैं देयर इज नो इशू, ये खाली रेफरेंस के लिए है। इसमें आप देखो ये क्यों सा, ये पहले कितने टर्म हो गए, 1 2 3 और ये 4 टर्म हो गए, ठीक है ना। तो अब ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, यू हैव टू ओनली प्लॉट द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, FM, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई FM। अब इसकी फ्रीक्वेंसी m स्क्वायर t है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, FM। हाँ, m स्क्वायर t। जब किसी सिग्नल को तुम स्क्वायर करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, एक तरह से ये हो जाएगा, रुको सुन लो, m1t नहीं, m1 था नहीं, mt इंटू mt लिखोगे, ठीक है ना। तो जब दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या m1t और m2t, तो इसका हो जाता है मान लो 1 लिख लो,
तो इसका हो जाएगा ये F1 प्लस FM2, ठीक है ना। तो ये तो सिंगल सेम है MT, इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस FM हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड हो जाती है। इनफैक्ट दो कंपोनेंट निकल के आते हैं, ठीक है ना। अगर जो होता क्या है, ये सिर्फ ऐड नहीं होती है, इनकी दो आती हैं, F1 प्लस F2 होगा और F1 माइनस F2 होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी दो F1 इज इक्वल टू F2 है तो ये तो जीरो हो गया, इसलिए दोनों प्लस ही निकले, तो ये ट्वाइस FM हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन तुम लोग को मैथमेटिक्स में कर लेना, तो FM हो गया, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस FM। तो इसको लिख लो ट्वाइस FM यहाँ के ऊपर। हम इसके जो है मैग्नीट्यूड से कोई मतलब हमें नहीं है। अब आ जाओ, अब ये आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये cos स्क्वायर 2fct है, तो हमने क्या कर रहा है, जब से ये cos 2πfct इसको ट्वाइस fc हो जाएगा। तो fc वैल्यू जो है, fc वैल्यू मान लो तुमने यहाँ लिख दिया है, fc को हम थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है fc। तो यहाँ पे fc है, तो ट्वाइस fc कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ट्वाइस fc। तो इसको दिखा दो कि ये सिग्नल प्रेजेंट है, ट्वाइस fc हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बताओ। अब ये सिग्नल क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड छोड़ दो, ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ लिख दिया है, इसका मैग्नीट्यूड छोड़ दो। ये आपका तुम्हारा सिग्नल है mt इंटू cos 2πfct, ये प्रोडक्ट है सिग्नल का। देखो mt है ना यहाँ पे, ये k1 कांस्टेंट है, k2 कांस्टेंट है, ac कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट छोड़ दो, ये प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा, राइट। ये mt को बाहर निकाल लो, नहीं इनफैक्ट mt भी आएगा, mt प्लस है, नहीं इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा एक कांस्टेंट भी आ जा रहा है, एक कांस्टेंट भी आएगा इसके अंदर, k1 ac कांस्टेंट भी एक आ रहा है। इसको इन्होंने इसको अलग अलग कर लो, k1 ac cos 2πfct, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी fc हो गई, तो fc टर्म भी आ जाएगा तुम्हारा। कुछ समझ रहे हो तुम लोग। अब इसके निकालो क्या हो गई, cos 2π, ये प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट हमने क्या कहा था कि एक बार दोनों का डिफरेंस आएगा, एक दोनों का सम आएगा, राइट। तो क्या होगा तुम्हारा fc प्लस fm, fc प्लस fm, और एक आ जाएगा fc माइनस fm, ठीक है ना। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी टर्म आ गए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ये ब्रैकेट में है ना, तो cos 2πfct इस वाला आ जाएगा, cos 2πfct, और यहाँ पे आ जाएगा mt cos 2πfct। मैं कांस्टेंट को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी को है, ठीक है ना, बाकी करके देख लेना तुम लोग। सो क्या हो गया इसके अंदर, अब ये सारे फ्रीक्वेंसी आ गए। अब तुमको क्या करना बताओ, तुमको क्या करना था, तुम क्या ढूंढ रहे थे, आउटपुट तुम जनरेट क्या कर रहे थे, ये मैथमेटिक्स तुम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव कुछ होना चाहिए ना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था। सब तुम लोग कितने बड़े गधे हो यार, स्क्वायर मॉडल, आपने तुमने क्या किया था, तुमको जनरेशन ऑफ एम है ना, तो तुम क्या ढूंढ रहे हो, स्क्वायर लॉ, हाँ? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, यू वांट टू जनरेट एम। हेलो, क्या ये सर नहीं है, इज इट रॉन्ग। तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि तुम लोग क्या बोले, हाँ? कितने बड़े, मैं पूछ रहा तुम इस मैथमेटिकल एनालिसिस तुम क्यों कर रहे थे, तुमको एम जनरेट करना था ना। हाँ, तो सब सो क्यों रहो, ये सब बोलने में कितनी याद लगती जी। तो तुमको इसमें एम कहाँ पे है, दिस इज एम, यही तो एम है तुम्हारा, दिस इज योर एम। ये एम आया कि नहीं आया तुम्हारे पास, यस सर। तुम लोग समझ भी रहे हो कुछ हो। तो दिस इज इन दिस इक्वेशन,
वी हैव दिस एम, तो हमें सिर्फ चाहिए ये सिग्नल, राइट। और ये किससे आया है, इस इक्वेशन से आया है, राइट। ओके, तो ये दोनों सिग्नल भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों क्या करना होगा, इन दोनों को रिमूव करना होगा, ठीक है ना। तो हाउ टू रिमूव, हाउ टू सेपरेट दिस, बाय यूजिंग ए फिल्टर। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये हमने लिखा था यहाँ पे बैंड पास फिल्टर इसे लगाया था। दिस इज व्हाई वी हैव यूज्ड ए बैंड पास फिल्टर। इस फिल्टर की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला सिग्नल, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है, ट्वाइस FM है, तो इसकी बैंडविड्थ बनेगी ट्वाइस FM। तो जब फिल्टर डिजाइन करोगे बैंड पास फिल्टर क्या है, इसकी जो है इसका रेंज और इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी ट्वाइस FM, और इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, FC माइनस FM, और इसकी हायर फ्रीक्वेंसी कितना, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, FC प्लस FM। ये बैंड पास फिल्टर डिजाइन करोगे, इसका स्पेसिफिकेशन ये होगा, ठीक है ना। तो अब जब बैंड पास फिल्टर से लगाओगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ST। तो हमें ST क्या मिलेगा अब आउटपुट के ऊपर, अब आउटपुट जब लगाओगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, सिर्फ ये मिलेगा हमें, राइट। So what we have got here is that, तो पहले डिलीट कर दो, ठीक है ना। So what we have got right now, इक्वेशन हमारा मिल जाएगा, मैं इससे यहीं से लिख दे रहा हूँ। So our final equation we have received this one, okay. So this is the final equation. Now if you compare this with our standard equation क्या था आपका, अगर आपने पुराने इक्वेशन से देखें अगर जो आप, so your standard equation was, क्या आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, राइट। ये हमने आपको इक्वेशन पढ़ाया था हमने शुरू में। नाउ इन दोनों को तुम कंपेयर करो तो तुम्हारा क्या आ गया, ये हो गया AC डैश, राइट। तो AC डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा K1 AC, राइट। और KA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड KA इज इक्वल टू 2K2 बाई K1, राइट। ये तो आ गया तुम्हारा ना, बाकी चीज सही है। सो दिस KA this is called your, this is KA, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, ठीक है ना। ये K1 K2 हमने कांस्टेंट लिखा है, ओके। नॉर्मली दिस KA should be less than 1, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से K1 K2 कांस्टेंट को तुम यहाँ पे, जब यहाँ पे K1 K2 जो आपने लिखा है, तो इनकी वैल्यू कितनी रखनी है, दे आर कांस्टेंट, राइट। तो यू कैन जनरेट दिस, कीप द वैल्यू ऑफ K1 K2। अगर जो K1 K2 की वैल्यू अगर जो आपकी जो 1 से ज्यादा होगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ओके। एनीथिंग एल्स सर? नेक्स्ट क्लास में सना मैम वेट कर रही हैं। हाँ, तुमको नेक्स्ट क्लास की तो फिक्र है, जल्दी बिल्कुल तुम लोग जाओ। इसमें होगा तुम्हारे कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसको मैं इसलिए जल्दी लिखा नहीं हूँ, मैं टेस्ट इसलिए कॉपी में किया हूँ तो जल्दी थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट थोड़ा था। अब इसको क्या करना, आज रात में तुम लोग दोबारा पढ़ के आ जाना, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो कल पूछ लेना, ठीक है, ओके। तो नाउ यू कैन एग्जिट, हम क्लास में